हाय हेलो स्टूडेंट, ग्रीटिंग ऑफ द डे। जैसा कि हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं कोरिलेशन, और ये आपकी कोरिलेशन की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने कोरिलेशन क्या होता है वो डिफ़ाइन कर दिया था, कोरिलेशन की यूटिलिटी क्या है, वाई वी यूज़ कोरिलेशन, और कोरिलेशन का आपका टाइप क्या होते हैं, एंड एक वन अनदर टॉपिक दैट इज़ कोरिलेशन एंड कोजेसेशन। तो वो हम कर चुके हैं। आज हम कोरिलेशन का ही दूसरा वीडियो है, ये आपका कोरिलेशन का हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसमें हम करेंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। सो डिग्री ऑफ कोरिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, समझ में भी आ रहा है कि डिग्री का मतलब क्या होगा यहाँ पे, राइट। सो डिग्री ऑफ कोरिलेशन कैन बी नोन एज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो कि डिनोट करते हैं हम आर से, राइट। सो आर से डिनोट करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को। देर आर वेरियस type of degree of correlation. We have five. So first is your perfect correlation, right? Second is your high degree of correlation. Third, moderate. Fourth, low degree of correlation. And fifth is absence of correlation, means zero correlation. So let us do one by one. ये पांचों हम एक वन बाय वन करते हैं। सो ये देखिए, ये है आपका परफेक्ट कोरिलेशन। सबसे पहले हम परफेक्ट कोरिलेशन कर लेते हैं जी। परफेक्ट कोरिलेशन में आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और जो आपकी रेंज रहती है वो -1 से ये आपका -1 to +1 होता है, ठीक है। सो यू कैन सी हेयर perfect correlation when two variable vary at constant ratio in the same direction, it is perfect positive correlation, means जो आपका correlation coefficient value होगा वो आपका +1 होगा in case of positive correlation, right। and when the direction of change is opposite तो it is perfect negative, और perfect negative में जो आपका correlation का value होगा वो होगा -1। In case of positive correlation, perfect positive correlation, correlation coefficient is equal to +1, and in case of negative you can see -1. Then high degree, when correlation exists in very large magnitude, that is called high degree of correlation. In such case correlation coefficient range between ±0.75 to ±1, right. Then third is moderate degree of correlation, correlation coefficient on being within the limits ±0.25 and ±0.75 is termed as moderate degree of correlation, right। अगर आपका correlation इन दो values के बीच में आता है तो then low degree of correlation, when correlation exists in very small magnitude, means आपका correlation बहुत ही कम है, correlation है लेकिन value कम है, then it is called as low degree of correlation. In such a case correlation coefficient range between 0 and ±0.25. Then fifth is absence of correlation, when there is no relationship between the variables then correlation is found to be absent. In case of absence of correlation the value of correlation coefficient is 0. तो जब correlation ही नहीं तो definitely value क्या होगी, 0 ही होगी। तो आप इस टेबल में भी देख सकते हो, टेबल में आपको इजीली आपको नज़र आएगा। देखिए जी, पहले देखो आप परफेक्ट कोरिलेशन, राइट। तो परफेक्ट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो +1 वैल्यू होगी, नेगेटिव है तो -1 होगी। कोरिलेशन आपका हाई डिग्री भी हो सकता है। हाई डिग्री अगर पॉजिटिव में है तो वैल्यू +0.75 से +1 के बीच में रहेगी, अगर नेगेटिव में है तो -0.5 से लेके -1 के बीच रहेगी। इसी तरह से मॉडरेट में आपकी वैल्यू रहेगी +0.25 से +0.75, और नेगेटिव में -0.25 टू -0.75। इन लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन यू कैन सी 0 to +0.25, and in case of negative between 0 to -0.25, and in case of absence of correlation means there is no correlation, value will be 0 in both cases, either positive or negative.
So this is about degree of correlation. I hope it is very clear to you all, right? So next we will do the method of studying correlation. ये आपकी डिग्री भी हो चुका है जो कि बहुत ही इजी था, राइट? अभी हमने करने हैं मेथड्स. तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कोरिलेशन, इसके मेथड्स हैं, राइट? Basically we have two type of method. We can divide the methods in two categories. First is graphic methods, second is algebraic method. In graphic method we have scatter diagram, right, and correlation graph. And in algebraic method, Karl Pearson coefficient of correlation, rank correlation method, concurrent deviation method. And Karl Pearson coefficient of correlation is very popular method, right? So let us do one by one. So first of all, today we will do only graphic method. So graphic method. In graphic method we have scatter diagram, which is really very easy method. In scatter diagram, graphic method, we can plot a graph to find out the correlation between two variables. By this method, direction, we can know about the direction can be assumed, means you can ascertain only direction. तो ये मेथड यूज़ करके आपको डायरेक्शन पता चल जाती है, और जो वैल्यू है उसका आप थोड़ा सा एस्टिमेशन लगा सकते हो. एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू सिर्फ 3 ही केसेस में पता चलेगी, अगर परफेक्ट पॉजिटिव है तब, परफेक्ट नेगेटिव है तब, या फिर ज़ीरो कोरिलेशन है तब. मॉडरेट और लो डिग्री का हम एक्यूरेट अंदाज़ा नहीं लगा सकते इसमें. तो इसमें ईच पेयर ऑफ जो वेरिएबल गिवन होगा आपको एक्स वाई का, हम उसको 2 डायमेंशनल स्पेस में एक्स वाई में उसको प्लॉट कर देते हैं, राइट? ईच पेयर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज इज प्लॉटेड इनटू 2 डायमेंशनल स्पेस ऑफ एक्स एंड वाई. thus we get a scatter diagram by plotting all the pair of values, right? In correlation we have 2 variable, right? In pair different points may be scattered in various ways. तो फर्स्ट ऑफ स्टार्ट जो आपका पहला है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, जहाँ पे आपका जो आर की वैल्यू वो +1 होगी, ठीक है? तो ये देखिए जो फर्स्ट वन है ये वाला ग्राफ आपका पॉजिटिव का है ग्राफ. देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये पॉइंट्स आपके साथ साथ बढ़ते हैं और साथ साथ आपके या तो साथ साथ दोनों बढ़ रहे हैं या फिर साथ साथ ये डिक्रीज़ हो रहे हैं. इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इनका साथ साथ चलेगा आपके पास, ठीक है? अभी आपके एग्जाम्पल से आपको मोर क्लियर हो जाएगा, राइट? तो आपका जो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का जो डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा. इफ़ ऑल द पॉइंट आर प्लॉटेड इन ए शेप ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये देखिए अगर इन पॉइंट्स को आप इस पे एक लाइन बनाते हो तो आपकी एकदम से स्ट्रेट लाइन बन जाती है, राइट? यहाँ पे थोड़ा हाथ से बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ये अगर आप इसको प्लॉट करोगे स्केल विद द हेल्प ऑफ स्केल, यू विल फाइंड दैट देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन, राइट? तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपकी, ठीक है? यू कैन मेक दिस लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल. Then perfect negative correlation. This is your perfect negative correlation. See, in case of positive correlation, we are going, left to right onward, and in case of negative, we are coming, left to right downward, right? So here you can see angle of 45, here you can see reverse thing is happening, right? So ये आपको धीरे धीरे आप जब कुछ एग्जाम्पल्स कर लोगे तो आपको डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा, राइट? तो अभी देखते हैं हम यहाँ पे, देखिए आप, ये हो गया आपका परफेक्ट पॉजिटिव और ये आपका परफेक्ट नेगेटिव, राइट? तो परफेक्ट नेगेटिव में क्या होता है कि जो 2 वैल्यू हैं वो आपका उनमें नेगेटिव कोरिलेशन है, एक इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ हो रही है, दूसरी डिक्रीज़ हो रही है तो पहली इंक्रीज़ हो रही है. इस तरह से आपका ये रहेगा इसमें, राइट? सो देन हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन.
अब ये देखिए, ये आपका हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब ये कैसे पता चलता है आपको, जब आप प्लॉट करते हैं, देखिए ये वैल्यू प्लॉट करते हैं तो इनमें एक बीच में लाइन आप ड्रॉ कर दोगे और हाफ जो पॉइंट्स है वो लाइन के ऊपर होंगे और हाफ लाइन से नीचे होंगे और वो थोड़ा पास पास होंगे, तो ये आपका हाई डिग्री का रहेगा, राइट। और ये आपका हाई डिग्री नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, राइट। डायरेक्शन विल बी सेम, तो ये लाइन बन गई, ठीक है। देन नो कोरिलेशन, जब आपका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये जो आपके पॉइंट्स हैं इनमें से आप लाइन लगा भी दो तो कुछ पता नहीं चल रहा, देयर इज़ नो कोई पैटर्न ही नहीं फॉलो हो रहा, ये सर्कल सा बन जाता है, तो आपका यहाँ पे ज़ीरो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन मीन्स कोरिलेशन इज़ ज़ीरो। तो आप इसको लो डिग्री का भी हो सकता है। लो डिग्री में देखिए कैसे हो जाएगा, जो आपके पॉइंट्स होंगे वो ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाएंगे लाइक दिस, और जब आप इसको बीच में से एक लाइन ड्रॉ करोगे सीधी, ये देखिए, तो ये पॉइंट्स दूर दूर होंगे इससे थोड़े, तो ये आपका लो डिग्री का भी आप इस तरह से बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आपके पॉइंट फिर भी पास पास हैं, लो डिग्री में क्या है, इसको थोड़ा सा और स्कैटर कर दो, थोड़ा ऊपर, ये देखिए लो डिग्री मैं बना रही हूँ इसको ही, राइट। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। और जब आपके पास कोई पैटर्न ही नहीं होगा, इसका मतलब होगा कि आपके पास कोई कोरिलेशन नहीं है। चलो लेट अस डू वन एग्जाम्पल। अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हाई डिग्री पॉजिटिव, हाई डिग्री नेगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन का भी आपको समझ में आ गया। तो अभी ये देखो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ है। अब वी हैव टू वेरिएबल गिवन द फॉलोइंग पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड वाई, राइट। मार्क अ स्कैटर डायग्राम, इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई, सो लेट अस फाइंड आउट। ये देखिए, अभी यहाँ पे आपने वैल्यू की प्लॉट कर लिया है, यहाँ पे नीचे आप एक्स, ये आप एक्स वेरिएबल ले लो, राइट। और ये आप, ये देखिए ये आपका एक्स है वेरिएबल और ये आपका वाई वेरिएबल है, राइट। 1 मिनट, एक बारी, ये है एक्स, ये देखिए फिर से देख लीजिए आप एक बार, 1 मिनट, ये देखिए ये 10, ये 25, ये 20, ये 50, ये 30, ये 75। आप देखिए ये 10 से 20 हुआ, ये 20 से 30, ये 20 से 25, सॉरी 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। अभी आप देखिए यहाँ पे हर बार इंक्रीज़ हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे हर बार इंक्रीज़ हो रहा है 10 का, राइट। हर बार 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। और यहाँ पे नीचे देखिए आप वाई में वेरिएबल में 25 से 50 हो रहा है, 50 से 75, यहाँ पे हर बार 25 इंक्रीज हो रही है। मीन्स जो आपकी रेशो रहेगी, ये 10:2 मैं अगर बोलती हूँ 25, इसको अगर 5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, तो रेशो बनती है 2:5 की, 5 2 = 10, राइट। तो यहाँ पे भी देखिए हर जगह आपकी यही रेशो बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सोल्व होने वाला। अभी आपको दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए अगर आप 20 और 50 को भी रेशो देखते हो तो 0 से 0 कट, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। अभी देखिए, नाउ यू हैव टू प्लॉट ऑल द वैल्यूज़। अभी देखिए 10 25 20 50, देखिए 10 25 20 50 30 75 40 100 50 125 60। अभी देखो ये लाइन जो प्लॉट की तो सीधी लाइन आ रही है ना, तो ये है आपका, यानी कि अगर आपकी लाइन इन सारे पॉइंट्स के बीच से जा रही है तो इसका मतलब है देयर इज़ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। मीन्स आर कोफिशिएंट वैल्यू है जो वो आपकी +1 होगी यहाँ पे, राइट, बिकॉज बोथ आर इंक्रीजिंग, दोनों ही वेरिएबल हैं जो इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसकी कुछ मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। So, determining correlation by this method is easy because no mathematical computation are to be done. The major shortcoming of this method is that degree of correlation cannot be determined. तो ये इसकी मेजर, और डिग्री कब नहीं पता चलेगी आपको, जब आपका लो डिग्री या फिर हाई डिग्री कोरिलेशन होगा। देखो 0 में पता चल जाएगी और ये परफेक्ट में तो देखो पता चल ही रही है। देन कम टू अनदर ग्राफिकल मेथड, दैट इज कोरिलेशन ग्राफ। ठीक है, कोरिलेशन ग्राफ ये भी बहुत इजी मेथड है। कोरिलेशन कैन आल्सो बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन ग्राफ। अंडर दिस मेथड 2 कर्व्स आर ड्रॉन बाय मार्किंग
द टाइम, प्लेस एंड सीरियल नंबर एक्सेट्रा ऑन एक्स एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल। जो वेरिएबल हैं एक्स वो वाई एक्सिस पे चले जाएंगे। यहाँ पे वहाँ पे क्या था, एक वेरिएबल एक्स एक्सिस पे आ गया था। स्कैटर डायग्राम में अगर आप कहेंगे डिफरेंस क्या है, स्कैटर डायग्राम में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो एक वेरिएबल था वो एक्स एक्सिस पे आ जाता है, एक वेरिएबल वाई एक्सिस पे। यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल होंगे जो आपके वो वाई एक्सिस पे आएंगे। अभी क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दीज कर्व इन द फॉलोइंग ए। अगर ये दोनों ही कर्व, if curves of both series move up or down in the same direction, तो we can say positive correlation. If curves of both series move in a opposite direction, then we can say there is negative correlation. Let us do with example. और इस मेथड की जो मेरिट्स हैं वो डीमेरिट्स हैं वो स्कैटर डायग्राम के जैसे ही हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा समझ आएगा। कंस्ट्रक्ट ए कोरिलेशन ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा एंड कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। सो वी हैव डाटा ईयर वाइज, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 1990 to 1995, and we have data of production in lakh ton and we have data of consumption in lakh ton, right? So let us plot our graph. So here you can see, देखो यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि जो बेस पे होगा आपने क्या लेना होता है, आपको बेस पे लेना है ईयर, राइट। अभी ईयर लिया है हमने यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे देखिए दो कट डाले हुए हैं, ये देखो दो ब्रेक डाला हुआ है। ये क्यों लेते हैं हम ब्रेक, बता देती हूँ मैं आपको। देखो जर्नली जब भी हम अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं वाई पे जो भी वैल्यू लेंगे हम, राइट, ये जो इस ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से, यहाँ 0 हो गया हमारा, ठीक है, फिर हमारा 5, 10 इस तरह से कुछ लेते हैं हम, ठीक है। ये थोड़ा विजिबिलिटी में मान लो मैंने ये ग्राफ मान लिया लाइन, ओके। तो हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं, लाइक ये 0 ओरिजन से, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। तो आपने इस तरह के ग्राफ में देखा होगा कि कोई कट नहीं होता। यहाँ पे कट है, वो कट क्यों है थोड़ा सा बता देती हूँ आपकी नॉलेज के लिए। ये कट इसलिए है क्योंकि हमने जो वैल्यू ली है वो डायरेक्ट 35 ले ली है 0 से, और इसमें देखिए अदरवाइज अगर यहाँ ऊपर 5-5 का गैप, अगर मैं 5-5 का गैप दिखाऊं तो ये आपका ग्राफ लगभग यहाँ से स्टार्ट होना था, इधर से, जो अजीब लगता दिखने में, जो अजीब लगता। तो हमने ये शॉर्ट, ये जो 2 कट लगा दिए हैं, या तो हम इस तरह से लगा सकते हैं या फिर हम इस तरह से 2 कट लगा सकते हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद एनी नंबर, राइट। तो ये गैप जो कवर कर लेगा, इस लाइन में कटी सीरी लगाया है, ठीक है। तो फिर है आपका ये देखिए 35 देन 40, इस तरह से आपने 5-5 के इंटरवल पे ये वैल्यूज़ ले ली हैं, और ये आपने ईयर ले लिया है। तो पहले ईयर से स्टार्ट कर देना। 90 में जो आपका जो प्रोडक्शन था वो 45 से थोड़ा ऊपर था, पीछे जाना पड़ेगा हमें इसके लिए, 1 मिनट, कितना था अभी 46, ये देखिए इन्होंने ऐसे ले रखा है 46, 48, 58, 58, 64, 60, ठीक है। तो हम अंदाजे से यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम प्रोडक्शन की वैल्यू प्लॉट कर लिया है, ये 46, 48, देन 56, 56, देन आई थिंक 58 था ये। तो इस तरह से आप वो ग्राफ देख के आप यहाँ पे वैल्यू प्लॉट कर लोगे, उसके बाद आप कंजप्शन की वैल्यू प्लॉट कर लोगे। अभी देखिए यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये देखो सेम डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, राइट, सेम डायरेक्शन में, और डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर ये गैप हमेशा इक्वल रहता तब तो यहाँ पे होता परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन जिसकी वैल्यू होती 1। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पे हाई डिग्री कोरिलेशन है, राइट, परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है, हाई डिग्री पॉजिटिव है। इन अबव शोन ग्राफ ईयर आर शोन ऑन ओ एक्सिस, ये देखिए आपका ओ एक्सिस पे दिखा दिया ईयर, राइट, एंड द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन वाई एक्सिस पे, जैसे कि उन्होंने पहले ही बोला था वेरिएबल वाई एक्सिस पे आएंगे, राइट। सो दिस ग्राफ रिवील दैट 2 वेरिएबल आर क्लोजली रिलेटेड, देखो दिख रहा है क्लोजली रिलेटेड है, बोथ कर्व आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है दूसरा घट रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन आल्सो रिमेन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, नॉट कॉन्स्टेंट, ऑलमोस्ट। सो देयरफॉर देयर इज हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन देन। हमें यहाँ पे +1 नहीं कहा है, +1 कब होता है, जब ये जो
डिफरेंस है वो बिल्कुल एकदम इक्वल होता है। ठीक है, तो आई होप इन दिस वे आपको समझ में आया होगा। जो अलजेब्रिक मेथड है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।